ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਆਲ ਆਫ ਯੂ। ਜੀ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 8.3 ਦੇ ਫਸਟ 6 ਸਮ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਏ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 7th ਸਮ ਹੈ। ਮਾਰੀਆ ਇਨਵੈਸਟਡ ਰੁਪੀਜ਼ 8000 ਇਨ ਏ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਸ਼ੀ ਵੁੱਡ ਬੀ ਪੇਡ ਇੰਟਰਸਟ ਐਟ 5% ਪਰ ਐਨੂਅਮ ਕੰਪਾਊਂਡਡ ਐਨੂਅਲੀ। ਫਾਈਂਡ the amount credit against her name at the end of the second year। ਕੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਇਸ ਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਾਰੀਆ ਨੇ 8000 ਰੁਪੀਜ਼ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤੇ ਰਹੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਲਈ। ਉਸਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ 5% ਪਰ ਐਨੂਅਮ। ਆਪਾਂ ਅਮਾਊਂਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਰਹੇ ਆਫਟਰ 2 ਈਅਰਸ। ਮੀਨਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 2 ਈਅਰ ਦੇ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ 5% ਹੈ ਐਂਡ ਜੋ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 8000। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਗਿਵਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 8000 ਰੁਪੀਜ਼, ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ 5% ਪਰ ਐਨੂਅਮ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 2 ਈਅਰਸ। ਅਮਾਊਂਟ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੀਨਸ P × 1 + r/100⁻n। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਤੀ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਸੀ 8000, 1 + r ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 5% ਮੀਨਸ 5/100। n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਟਾਈਮ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2 ਈਅਰਸ। ਅਤੇ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2 ਈਅਰ ਪੁੱਟ ਕਰਤੀ ਰਹੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਂਗੇ 5 1 r 5 5 20 r 100 ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 1/20। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਐਲਸੀਐਮ ਲੈ ਰਹੇ। ਐਲਸੀਐਮ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਲਸੀਐਮ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 20। ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 20 + 1/20। ਕਲੀਅਰ 21/20 ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੈਂਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 8820 ਰੁਪੀਜ਼। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਮਾਰੀਆ ਰਹੀ ਉਹ ਕੀ ਹੈ 2 ਈਅਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੇ ਕਰੂਗੀ 8820 ਰੁਪੀਜ਼। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਫਾਰ ਦਾ 3rd ਈਅਰ। 3rd ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਰਹੇ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਇੰਟਰਸਟ ਆ ਉਸਨੂੰ ਪਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਓਨਲੀ ਇੰਟਰਸਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਫਸਟਲੀ ਆਪਾਂ 3 ਈਅਰ ਦੇ ਲਈ ਅਮਾਊਂਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੇਂਗੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਊਗਾ ਇੰਟਰਸਟ ਫਾਰ 3rd ਈਅਰ। ਦੇਖੋ ਰਹੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ 8000 ਰੁਪੀਜ਼ ਹੈ, ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ 5% ਪਰ ਐਨੂਅਮ ਹੈ ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 3 ਈਅਰਸ ਹੈ। ਅਮਾਊਂਟ ਦਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 8000 × 21/20 × 21/20 21/20। ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੁਪੀਜ਼ 9261। ਇੰਟਰਸਟ ਫਾਰ 3rd ਈਅਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਮੀਨਸ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ। ਅਮਾਊਂਟ ਮੀਨਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ। ਅਮਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੇਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4441 ਰੁਪੀਜ਼। ਕਲੀਅਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਫਸਟ ਸਮ ਕੰਪਲੀਟ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 8 ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਅਮਾਊਂਟ ਐਂਡ ਦਾ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ ਔਨ ਰੁਪੀਜ਼ 10000 ਫਾਰ 1.5 ਈਅਰਸ ਐਟ 10% ਪਰ ਐਨੂਅਮ ਕੰਪਾਊਂਡਡ ਹਾਫ ਈਅਰਲੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਹਾਫ ਈਅਰਲੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਮਾਊਂਟ ਐਂਡ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੁੱਡ ਦਿਸ ਇੰਟਰਸਟ ਬੀ ਮੋਰ ਦੈਨ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੀ ਵੁੱਡ ਗੈਟ ਇਫ ਇਟ ਵਾਜ ਕੰਪਾਊਂਡਡ ਐਨੂਅਲੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਐਨੂਅਲੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਲੀਅਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਫਸਟਲੀ ਆਪਾਂ ਹਾਫ ਈਅਰਲੀ ਦੇ ਲਈ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਅਮਾਊਂਟ ਐਂਡ ਕੰਪਾਊਂਡਡ ਇੰਟਰਸਟ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਗਿਵਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 10000 ਰੁਪੀਜ਼, ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ R 10% ਪਰ ਐਨੂਅਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆ ਹਾਫ ਈਅਰਲੀ ਦੇ ਲਈ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਫਸਟਲੀ ਫਾਈਂਡ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ 10% ਪਰ ਐਨੂਅਮ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਨੂਅਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਹਾਫ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 5% ਹਾਫ ਈਅਰਲੀ ਦੀ ਬਣ ਜੂਗਾ ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1.5 ਈਅਰਸ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਰਹੇ 6 ਮੰਥ ਦਾ ਮੀਨਜ਼ ਹਾਫ ਈਅਰ ਦਾ 1 ਹਾਫ ਈਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ 6 ਮੰਥ ਦਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹਾਫ ਈਅਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 3, ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3 ਹਾਫ ਈਅਰਸ ਆ ਗਿਆ ਟਾਈਮ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਰਹੀ ਅਮਾਊਂਟ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਤਾ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ × 1 + r/100⁻n। ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੁਪੀਜ਼ 10000। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਤੀ ਰੁਪੀਜ਼ 10000 ਐਂਡ 1 + r/100 ਮੀਨਜ਼ 5% ਸੀਗੀ r ਆਪਣੇ ਕੋਲ 5/100 ਦੀ ਪਾਵਰ 3 5 1 r 5 520 r 100 1/20 n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ 3। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਲਸੀਐਮ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 21/20 ਦੀ ਪਾਵਰ 3। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਊਗਾ 1576.25 ਰੁਪੀਜ਼। ਕਲੀਅਰ।
नाउ फॉर कंपाउंडड एनुअली हुण आपां कंपाउंड इंटरस्ट है जिहड़ा एंड अमाउंट है जी वो एनुअल के लिए फाइंड करेंगे। उस तरह प्रिंसीपल अपने को वही है, रेट ऑफ इंटरस्ट 10% पर एनुअल दी हुई थी अपन, टाइम है जो 1.5 ईयर से दिता हुआ थी। ठीक है, जो अपन टाइम रही फ्रैक्शन हो ईयरस, ठीक है, फस्टली अपन जो होल नंबर होंगे उस दे अकॉर्डिंग फाइंड करते हैं। उस तो बाद जो अपने को नैक्सट रह जाता फ्रैक्शन के उस दे अकॉर्डिंग आप इंटरस्ट है जो फाइंड करते हैं। फस्टली अमाउंट फॉर 1 ईयर, 1 ईयर के लिए अमाउंट की होगी, मीनज एन की वैल्यू कितनी होगी अपने को 1। प्रिंसीपल की वैल्यू पुट करती 1 + r/100। ठीक है, ये वैल्यू पुट करने तो बाद रहे 10 1 r 10, 10 10 r 100। ठीक है, ये अपने को बन गया 1 + 1/10। एलसीएम लवेंगे तो 10 + 1/10 आ गया अपने को 11/10। इसमें सॉल्व करने तो बाद क्या आ गया अपने को 11,000 रुपये है जो किया गया अमाउंट आ गई फॉर 1 ईयर। उस तो बाद रही जो आप नैक्सट ईयर का फाइंड करते होंगे उसके लिए की होंगे जो अपने को अमाउंट होंगी वो प्रिंसीपल बन जाता होंगे। क्लीयर, रेट ऑफ इंटरस्ट से जो टाइम है वो आप उसके अकॉर्डिंग लेना होंगे। रेट भी अपने को ही रही है एंड जो अमाउंट होंगे वो प्रिंसीपल बन जाता होंगे। इंटरस्ट किस तरह फाइंड करते होंगे रही आप प्रिंसीपल इंटू आर इंटू टाइम ओवर 100। प्रिंसीपल कि अपने को 11,000 रुपीज़ एंड आर कितनी है 10% एंड टाइम कितना हाफ ईयर। क्लीयर, तो अपने को 1/2 10 ना कैंसिल करेंगे 5 आ गया अपने को, ये 2 0 इस कैंसिल हो गई हैं तो अपने को आ गया 550 रुपीज़। क्लीयर, तो टोटल अमाउंट कितनी है 11,000 पहला सी 550 होर ऐड हो जूगी तो 11,550 रुपीज़ है जी वो की टोटल अमाउंट आ गई। एंड कंपाउंड इंटरस्ट आप किस तरह फाइंड करेंगे अमाउंट माइनस प्रिंसीपल, तो कितना आ जाएगा अपने को 11,550 माइनस 10,000 इक्वल टू 1,550 रुपये। क्लीयर। सिमिलरली नेक्स्ट सम है रही फाइंड द अमाउंट विच राम विल गेट ऑन रुपीज़ 4,096 इफ ही गिव इट फॉर 18 months एट 12 into 1/2% पर एनुअम इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ठीक है, आप ही करना रही हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग जो अमाउंट है वो फाइंड करेंगे। प्रिंसीपल गिवन अपन 4,096 एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 12.5 ईयरस। इसमें मिक्सर फ्रैक्शन इंप्रॉपर फ्रैक्शन में लिखा, प्रॉपर फ्रैक्शन में कितना आ जाएगा अपने को 212/24 + 1 25/2% पर एनुअम, तो कितना बन गया 25/2 जो हाफ करेंगे वो अपने को हाफ ईयरली बन जाऊगा। इसमें 2 ने डिवाइड करता रहे कितना बन गया 25/4% हाफ ईयरली। एंड टाइम है वो 18 मंथ्स देता सी तो 18 मंथ कितना बन गया अपने को 1.5 ईयरस। ठीक है, 1.5 ईयर के कितने हाफ ईयर होंगे 3 हाफ ईयर होंगे, मीन टाइम कितना आ गया अपने को 3। अमाउंट का रही उसी तरह आप फॉर्मूला लगाया था प्रिंसीपल प्लस इंटू 1 + r/100 की पावर n। ठीक है, सारिया वैल्यू पुट करती रही, वैल्यू पुट करने तो बाद अपने को 4,096 इंटू 1 + 1/16 की पावर 3 इन्होंने एलसीएम लवेंगे तो कितना आ जाएगा 16 एलसीएम आ गया, तो 16 + 1 17/16 की पावर 3 आ गया। इस तो बाद इसमें सॉल्व करने तो बाद रहे अपने को आ गया रुपीज़ 4,913। सिमिलरली रही 10th सम क्वेश्चन है अपने को द पॉपुलेशन ऑफ ए प्लेस इंक्रीड 54,000 इन 2003 एट ए रेट ऑफ 5% पर एनुअल। किसी प्लेस की रही पॉपुलेशन जी इनक्रीज हो जाती है वो कितनी बन जाती है इनक्रीज हो गई 54,000 इन 2003 के। ठीक है, जिस इनक्रीजिंग की जो रेट है वो है 5% पर एनुअम। फाइंड द पॉपुलेशन इन 2001 आप दसना रहे 2 साल पहला मीनज 2 ईयर पहला उसकी पॉपुलेशन है जी कितनी सी। ठीक है, हूँ ये की हो गया रही अपने को अमाउंट ऑफ 2003 की अपन गिवन है, आप प्रिंसीपल फाइंड करना 2001 का। ठीक है, अमाउंट है अपने को गिवन 2003 की 54,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है एंड टाइम है जोड़ा वो कितना है 2 ईयरस। प्रिंसीपल फाइंड करना रहे आप 2001 का। क्लीयर।
उस तरह आप अमाउंट का फॉर्मूला लगा लिया, प्रिंसीपल इंटू 1 + r ओवर 100 की पावर n। अमाउंट अपन गिवन रही, प्रिंसीपल आप फाइंड कर लेंगे। ठीक है, इसमें आप कैलकुलेशन करने तो बाद बन गया अपने को 21/20 मल्टीप्लाई 21/20। ठीक है, जो इन्होंने आप दूसरी साइड लेके जाएंगे तो वो रेसिप्रोकल हो जाएगा। आ प्रिंसीपल उस तरह पे अपने को ये भी उवें पे रही। इसमें आप इधरली साइड लेके गए 54,000 वाली, तो वो रेसिप्रोकल हो गया, 20/21 बन गया, और ये वाला भी 20/21। इस रही अपने को प्रिंसीपल आ गया 2001 का। मीन 2001 के जिन्नी पॉपूलेशन सी वो कितनी सी 48,980। नैक्सट है वट वट बी इट्स पॉपूलेशन इन 2005। 2005 के कितनी पॉपूलेशन होगी रही, इसे अपने को रेट के नाल फाइंड करनी है। दैन की होगा रही अपने को प्रिंसीपल कितना होगा 54,000 एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5% होगी, तो टाइम कितना होगा 2003 तो लैके 2005 तक, मीन ये भी 2 ईयर बन गई। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप अमाउंट है जी फाइंड कर लें। अमाउंट फॉर 2005 के लिए कितनी होगी, प्रिंसीपल इंटू 1 + r ओवर 100 की पावर n। प्रिंसीपल की वैल्यू पुट कर ली, 1 + r की वैल्यू है 5%, 5 ओवर 100 की पावर 2, 54,000 मल्टीप्लाई ये कितना बन गया अपने 1 + 1 ओवर 20 की पावर 2। ठीक है, ये कितना बन गया 21 ओवर 20 की पावर 2। इसमें सॉल्व करेंगे तो कितना बन जाएगा 59,535। देयरफॉर पॉपुलेशन इन 2005 वट बी 59,500। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है अपने को, इन ए लेबोरेटरी द काउंट ऑफ ए बैक्टीरिया इन ए सर्टेन एक्सपेरिमेंट वाज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2.5% पर आवर। फाइंड द बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 2 आवर्स इफ द काउंट वाज इनिशियली 5,06,000। क्लीयर, कि जेकर स्टार्टिंग के बैक्टीरिया जी कि 5,06,000 है एंड 2.5% पर आवर की रेट के नाल वो इंक्रीज हो रहे हैं, तो आप दसना भी 2 आवर के किन्ने बन जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए अपने को प्रिंसीपल है जो कि 5,06,000 एंड जो रेट आएगी वो कितनी हैगी 2.5% पर आवर, तो टाइम है जो कि 2 आवर्स। ठीक है, वो आप अमाउंट है जी फाइंड करेंगे रही। प्रिंसीपल गिवन आपको रेट दी हुई है एंड एन मीन जो टाइम दिता हुआ 2 आवर्स। अमाउंट का फॉर्मूला वही लगाया रही आप पहला वाला, तो कितना बन गया अपने को 5,06,000 1 + 2.5 ओवर 100। 2.5 में लिख ले रहे आप 25 ओवर 10 मल्टीप्लाई 100। ये कितना बन गया 25 ओवर 1000। इसमें कैंसिल कराएंगे तो कितना बन गया 1 ओवर 40। क्लीयर, यदा एलसीएम ले रहे 40 एलसीएम आ गया एंड 40 + 1 41 ओवर 40 दी पावर 2 सी, उसमें 2 टाइम लिख ले रही। इसमें सॉल्व करने तो बाद आ गया अपने को 5,31,616.25। देयरफॉर नंबर ऑफ बैक्टीरिया आफ्टर 2 आवर्स आर 5,31,616 अप्रॉक्सीमेट। क्लीयर, नैक्सट एक्सरसाइज का लास्ट सम है अपने को, इस स्कूटर वाज बॉट रुपीज 42,000। एक स्कूटर सी रही 42,000 रुपये का खरीदे सी। इट्स वैल्यू डेप्रीसीएटेड एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। जो रही इसकी वैल्यू है जी, ठीक है, वो स्कूटर के घसन के कारण 8% है जी वो घट गई है। फाइंड इट्स वैल्यू आफ्टर 1 ईयर, तो 1 ईयर बाद दसनी रही उसकी की वैल्यू रह जूगी। क्लीयर, मीन जी घट जानी है 8%, तो आप ही करेंगे रही प्रिंसीपल भी गिवन अपन रेट ऑफ जी हैगी वो भी गिवन है एंड टाइम है जो भी गिवन है। अमाउंट फाइंड करनी रहे आप आफ्टर 1 ईयर। क्लीयर, दसना रही कितनी अमाउंट है जी वो घटूगी, तो आप ही करेंगे प्रिंसीपल इंटू पहला आप फॉर्मूला ऐड कर देंगे रहे, इतने क्या होगा अपने को -1 - r ओवर 100। क्लीयर, उसी तरह वैल्यू पुट करती रही, वो बन गया अपने को 42,000 मल्टीप्लाई 92 ओवर 100। इसमें सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया 38,640। देयरफॉर वैल्यू ऑफ स्कूटर आफ्टर 1 ईयर कितनी हैगी ₹38,640। इस दिन रही अपनी एक्सरसाइज एंड चैप्टर जो कंप्लीट होंगे। किसी भी स्टूडेंट्स को कोई भी प्रॉब्लम हो रही कॉल या मैसेज करके तुम पूछ सकते हो। थैंक यू।